ہفتے میں نا 1 یا 2 لیکچر امپورٹنٹ جو ہے آپ کو کرائیں گے جو کہ کانٹیننٹ کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. جو آج ہمارا ٹاپک ہے جناب وہ ہے ورلڈ میپ کے ساتھ جو ہے سب سے زیادہ ہم نے پڑھنا ہے ساؤتھ امریکہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ یہ کنفرم کر دیں کہ آپ کو جو ہے جناب وائٹ بورڈ کلیئر نظر آ رہا ہے, آواز اوکے؟ جی جناب. اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہوگا تو آپ نے مطلب ہے کہ وائٹ بورڈ اپنا والیوم کو ان میوٹ کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ہماری کلاس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن ریکارڈنگ تھوڑی کلیئر نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا پوری کوشش کریں گے. جی جناب. آپ جانتے ہیں جناب کہ پی پی ایس سی کے تھرو جو بھی پیپر آتے ہیں یا ون پیپر کے آتے ہیں تو اس میں بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم تیار کرنے کا باوجود بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم ہر چیز کو کیا کریں گے, ہم ہر چیز کو جو ہے فارمولے کے تحت جو ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ فارمولے کے تحت یاد کرتے ہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی وہ سوال جو ہے نہیں بھولتے بلکہ آپ یاد رکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا جی. ہمارے پاس جناب جو ورلڈ میپ کا ایک سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ورلڈ میپ کو. تو ورلڈ میپ جو ہے آپ کو پتہ ہے جو زمین کی شکل ہے, زمین کی شکل کو ہم کیا کہتے ہیں بلا, زمین کی شکل جو ہے وہ ایگ کی طرح ہے یعنی انڈے کی طرح ہے. لیکن پیپر کے اندر کس طرح نام آتا ہے, پیپر کے اندر جو نام استعمال ہوتا ہے اس کو بلا ہم کیا کہتے ہیں ELIPITC ہے, ایلپٹیکل, یا اس کو جیوڈ بھی کہتے ہیں GOID. یہ دو نام جو ہے یہ شیپ آف, اس کو ہم کیا کہیں گے بلا, شیپ آف ارتھ. شیپ آف ارتھ جو ہے وہ جناب ہمارے پاس کیا ہے, گول ہے, شیپ آف ارتھ. اب دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا ہے, زمین جو ہے گول ہے. دیکھیں ہم کیسے بناتے ہیں اس کو, ہم زمین کی جو ہے شکل یہاں پہ بناتے ہیں. ورلڈ میپ کو ہم پڑھ رہے ہیں تو زمین جناب اس طرح ہمارے سامنے جو ہے کیا ہے, گول ہے. چلیں تو زمین جناب اس طرح ہمارے پاس گول ہے. ہمارے سامنے بالکل بالکل ہمارے سامنے جناب یہ نارتھ ہے اور ہمارے بیک سائڈ پہ یہ ساؤتھ ہے. اس کے بعد ہم WE لگا دیں گے, WE. تو یہ جناب ہمیں زمین کی ڈائریکشن ہو گئی. یعنی آپ جہاں جس طرح مرضی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے نارتھ ہے, آپ کے بیک سائڈ پہ جناب ساؤتھ ہے, آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ویسٹ ہے اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے. زمین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے والی جو لائن ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کی ڈائریکشن جناب ویسٹ سے شروع ہوتی ہے اور ایسٹ کی طرف جاتی ہے. یہ جناب یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پہ جائے گی. اس کو ہم جو ہے یہ جو لائن ہے یہ زمین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں بلا, اس کو جناب امیجنری لائن بھی کہتے ہیں, امیجنری لائن بھی کہتے ہیں, اور اس کو جناب یاد رکھیے گا ایکویٹر لائن بھی کہتے ہیں. ایکویٹر لائن وہ لائن ہے جناب, ایکویٹر لائن ہمارے پاس وہ لائن ہے جو کہ مطلب ہے کہ زمین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے. لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آئے گی. امیجن کا مطلب ہے خیال کرنا, سوچنا, اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے, ویسٹ سے ایسٹ کی جانب. اچھا جی. تو یہ کلیئر ہوگی بات. ہمارے ٹوٹل جو کانٹیننٹ کی تعداد ہے ٹوٹل 7 کانٹیننٹ ہے. آپ میں سے کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ جناب یہ جو خشکی کا ٹکڑا ہے, یہ جو زمین ہے, اس میں خشکی زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے؟ اینی ون, اس میں خشکی زیادہ ہے یا پانی زیادہ کم ہے؟ جی جی 71% جناب جو ہے وہ ہے واٹر. ٹھیک ہے. اور 29% جو ہے وہ ہے ارتھ, یعنی خشک جگہ. ٹھیک ہے. اب یہ 71 جو ہے, یہ 71 میں بھی یاد رکھیے گا 70% پانی جو ہے وہ کڑوا ہے, جس کو ہم جو ہے سالٹی واٹر کا نام دیتے ہیں, سالٹی واٹر. اور 1% پانی جو ہے وہ کیا ہے, جس کو ہم فریش واٹر یعنی پینے کے قابل دیتے ہیں. تو یہ پانی پوری دنیا میں جناب صاف ہو کے پیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب دیکھیں جو 7 کانٹیننٹ ہیں وہ کس طرح موجود ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں. 7 کانٹیننٹ میں جناب ایک اور لائن جو کہ یہاں نارتھ سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر آتی ہے جناب ساؤتھ میں. ٹھیک ہے. جی 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 میری بات سنیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو آپ کا نیٹ ہے نا, وہ نیٹ آپ کا کمزور ہے.
हाँ, किसी और के साथ प्रॉब्लम आ रहा है? एनीवन? किसी और के साथ तो मसला नहीं आ रहा? चलें चलें, आप अपना लेफ्ट करके दोबारा जाएं। अच्छा जी, इस लाइन को भला क्या कहते हैं? इस लाइन को जनाब कहा जाता है ये इक्वेटर लाइन हो गई, ये हो गई हमारे पास जहाँ पर टाइम कैलकुलेट होता है, इसका नाम जैसा है अपना, चले मैं बताता हूँ जल्द। अच्छा खैर, तो हमारे पास जो है 7 कॉन्टिनेंट, नहीं इसके ऊपर जो है ना उसको क्या कहते हैं मैं बताता हूँ अभी। अच्छा जी, हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है, हम सबसे पहले जनाब ये कॉन्टिनेंट बनाते हैं, इस कॉन्टिनेंट को, ये हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अफ्रीका। क्या कहते हैं भला? अफ्रीका। अफ्रीका को दरमियान में क्यों बनाया है? अफ्रीका वह कॉन्टिनेंट है जो पूरे चारों हेमिस्फीयर में पाया जाता है। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, पूरा अर्ज को 4 उसमें जब डिवाइड कर दिया गया है तो इस पूरा अर्ज के चारों हिस्सों में कौन सा आता है कॉन्टिनेंट? अफ्रीका आता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट मौजूद है, छोटा सा हम कहते हैं यहाँ पे, और इसके साथ जनाब यहाँ पे हमारे को मौजूद है ये हमारे पास हो गया जनाब यूरोप। क्या हो गया? यूरोप। ये हमारे पास हो गया एशिया। ठीक है। और यहाँ पे जनाब हमारे पास मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे कॉन्टिनेंट मौजूद है, इसको हम कहते हैं इंटार्कटिका। इंटार्कटिका। और एक कॉन्टिनेंट जो है हमारे पास वो इस तरह मौजूद है जनाब यहाँ पे, और एक कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। अब ये जो कॉन्टिनेंट है इसको हम भला क्या कहते हैं? ये हमारे पास जनाब नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारे पास साउथ अमेरिका। ठीक है। अब ये जो हमारे पास मौजूद है जनाब, पानी का जो मतलब मैंने आपको बताया कि 71% पानी है। अच्छा 71, एक और भी मैं आप यहाँ सवाल ऐड करने की इसमें आता है, ये जो 71 और 1 है ना, इसको अगर 100% पे कन्वर्ट करें ना तो ये साल्टी वाटर बनता है 97%, और ये 3% बनता है। अगर आप 100% पे कन्वर्ट करें तो ये भी आपने याद रखना। अब ये 97% जैसा 3% जो है, ये हमारे पास 71% वाटर है, ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ गया? तो इसको आपने याद रखना है। आपने लाइनें बनानी है जनाब, ये लाइन बन गई, उसके बाद आपने यहाँ पे एक लाइन बनानी है। ठीक है, ये बन गई। ठीक हो गया? बन गया। दूसरी लाइन जनाब आपने ये बनानी है, ये हमारे पास एक बन गई। ठीक हो गया। और एक लाइन आप जनाब यहाँ पे, अब ये देखें जो मैंने लाइनें बनाई है ना, इसके अंदर हमें वर्ड लिखूंगा। सबसे पहले हम क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा पी, इस जगह भी पी लिखूंगा, इस जगह भी पी लिखूंगा। कैसे? जो एग होता है आपका, गोल होता है ना, अगर पानी इस तरह पड़ा हो, आप उसको रखें तो दोनों साइड इधर वाली भी डूब जाएगी, इधर वाली भी डूब जाएगी, इसलिए पैसिफिक इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्या लिखना है? यहाँ पे आपने लिखना है एटलांटिक, ये ए हो गया। इसके बाद ये आई, इंडियन ओशन। इसके बाद ये एस, सौदर्न ओशन। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन सबसे छोटा जो ओशन है हमारे पास, इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जनाब ए, आर्टिक ओशन। क्लियर होगी बात? अब ये हमने याद कैसे रखने जनाब? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जनाब याद रखिएगा कि हमने इनको, मैंने सबसे पहले क्या लिखा? पी लिखा, फिर क्या लिखा? ए लिखा, फिर क्या लिखा? आई लिखा, फिर क्या लिखा? एस लिखा, फिर क्या लिखा? ए लिखा। ये देखें, पी ए आई एस ए, पैसा। ये पैसा कोड है, इसको याद रखना, ये तरतीब है जनाब। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन जो है फर्स्ट नंबर पे जो है वो क्या है भला? वो है जनाब पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। दुनिया का दूसरे नंबर पे सेकंड में आता है जनाब, उसका नाम है एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन। दुनिया का थर्ड नंबर पे जो मौजूद है उसका नाम है जनाब हमारे पास इंडियन ओशन। दुनिया के जनाब फोर्थ नंबर पे जो मौजूद है उसका नाम है हमारे पास सौदर्न ओशन। और आखिरी नंबर पे यानी पांचवें नंबर पे जो मौजूद है उसको फिफ्थ हम कहते हैं या समालिस कहते हैं, उसका नाम है ARCTIC, आर्टिक ओशन।
تو یہ آپ نے جب کوڈ آپ نے یاد رکھنا، پیسہ، پیسے کے لیے دنیا ماری، جس کے پاس پیسے وہی سب کچھ ہے، پیسہ ہو تو جناب خان کی حکومت بھی نہیں جاتی، تو غریب لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ ہو تو جناب کچھ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. خیر پیسہ جناب آپ نے یاد رکھنا ہے 1 2 3. اب پیپر میں کیا سوال آ گیا، وچ از دا تھرڈ لارجسٹ اوشن آف دا ورلڈ، PAI، تیسرے نمبر پہ آئی آ رہا ہے، آئی سے مراد انڈین اوشن. ٹھیک ہے. اچھا جناب والی میوٹ رکھیں، اگر آپ کو کوئی سوال بنتا ہے تو پھر آپ نے سوال کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے جو والیوم ہے اس کو میوٹ کر رکھنا ہے، لیکن جب سوال کرنا تو والیوم ان میوٹ کرنا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. کلیئر کی بات. اب جو ہمارے اوشن ہے جناب، یہ کانٹیننٹ ہے، کانٹیننٹ کی ڈائریکشن کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کس طرح پانی موجود ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے ایک بات سوال کا جواب دیں، ایشیا اور افریقہ کے درمیان کون سا اوشن ہے؟ اینی ون. Which ocean is lies between Asia and Africa? Anyone? Indian Ocean. یورپ اور افریقہ کے درمیان کون ہے؟ یورپ اور افریقہ کے درمیان اٹلانٹک اوشن. ٹھیک ہو گیا. ایک بات یہاں پہ یہ بھی آپ یاد رکھنی ہے، اور دوسری بات یہاں پہ ایک اور یاد رکھنی ہے، یہاں پہ جناب ایک سمندر ہے. اب یہاں پہ میں پہلے ایک بات بتا دوں، اوشن میں اور سمندر میں کیا فرق ہے. اوشن جو ہوتا ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ سمندر مل کے بناتا ہے، سمندر وہ کافی سارے دریا سے مل کے بنتا ہے. تو سمندر چھوٹا ہوتا ہے، یعنی سی چھوٹا ہوتا ہے، اوشن بڑا ہوتا ہے. اچھا جی، یہاں پہ ایک دریا ہے، اس دریا کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ریڈ سی. ریڈ سی وہ دریا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کراس کیا تھا. تو ریڈ سی از لائنگ بٹوین وچ 2 کانٹیننٹ؟ اینی ون؟ ریڈ سی کن 2 کانٹیننٹ کے درمیان ہے؟ افریقہ اینڈ ایشیا. ہاں جی بالکل. اچھا جی، یہاں پہ ایک سمندر ہے جناب، یہاں پہ ایک سمندر موجود ہے، بہت بڑا سمندر ہے. اس سمندر کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ اس سمندر کو جناب کہتے ہیں میڈیٹرین سی. MEDT، میڈیٹرین سی. سپیلنگ چیک کر لیجیے، MEDITTERNEN، میڈیٹرین سی. تو یہ جناب یاد رکھیے گا، یہاں پہ جو ہے جو موجود ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیا ہوا کہ یورپ اور افریقہ کے درمیان میڈیٹرین ہے، ایشیا اور افریقہ کے درمیان ریڈ سی ہے. تو یہ 2 سوال بڑے اہم ہیں، یہ پیپر میں اکثر آتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے درمیان پاناما کینال ہے. ٹھیک ہے. باقی کسی کے ساتھ کوئی سمندر کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کو پوچھا جاتا ہے. اب آخری ایک سوال ورلڈ میپ کے اوپر، اس کے بعد ہم یہ والا کانٹیننٹ پڑھیں گے، یہ والا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس جو اوشن ہے، سب سے پہلے آپ ایریا وائز یاد رکھیں، ایریا وائز، ایریا وائز. اس کے بعد جناب آپ نے یاد رکھنے پاپولیشن وائز. اب دیکھیں جناب ہمارے سامنے جو ہے مطلب ہے کہ جو اوشن ہے، کانٹیننٹ ہے، ان کے نام کو آپ پاتے ہیں نا، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا. ٹھیک ہے. ایریا وائز، ایریا وائز جناب آپ کا کوڈ بنے گا، سب سے پہلے نمبر پہ کوڈ کیا بنے گا؟ ڈبل اے، ادھر بھی ڈبل اے. کیا بن گیا؟ دنیا کا سب سے بڑا جو کانٹیننٹ ہے وہ ایشیا ہے، دوسرے نمبر پہ افریقہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ آبادی کے لحاظ سے ایشیا ہے، دنیا کا دوسرے نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے افریقہ. بات کلیئر ہوگی جناب؟ دنیا کا رقبے کے لحاظ سے تیسرا بڑا کانٹیننٹ کون سا ہے؟ اینی ون؟ اینی ون؟ تیسرا بڑا کانٹیننٹ کون سا ہے جی؟ اچھا جی، این، اس کے بعد ایس، اس کے بعد ای، اس کے بعد ڈبل. ٹھیک ہے. یہ جناب ہمارے پاس کیا بن گیا بلا؟ آن سی آ کوڈ ہے. کیسے؟ دنیا کا سب سے پہلے نمبر پہ ایشیا، پھر افریقہ، پھر نارتھ امریکہ، پھر ساؤتھ امریکہ، پھر یورپ، پھر جناب انٹارکٹیکا، اور آخری نمبر پہ آسٹریلیا. آسٹریلیا یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے جی. ہاں تو میں نے بھی 6 نمبر پہ لکھا ہے 3. نہیں، ہاں ٹھیک ہے. آن سیا، ہاں ٹھیک ہے، آن سیا یہ. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس انٹارکٹیکا 6 نمبر پر ہے، 5 نمبر پہ، 6 نمبر پہ یورپ آ جائے گا، اور آخری نمبر پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ آسٹریلیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس پاپولیشن وائز، پاپولیشن وائز جناب کیا بنے گا؟
इंसा, इसका कोड क्या बनता है? आ इंसा, आ इंसा क्या बनेगा? आ इंसा। कैसे? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ना, यहाँ पे 99.9% बर्फ है, तो इसलिए यहाँ आबादी है ही नहीं, इसलिए वो सबसे छोटा बन गया। जी जनाब, आंसिया और आ इंसा कोड याद रहेगा एनीवन? जी जनाब, कोड याद रहेगा? जल्दी जल्दी बोले, टाइम जा रहा है। और आपको पता है कि हमारी 40 मिनट के बाद क्लास जो है ना आउट हो जाती है जूम की। जी जनाब बताइए, ये आपको समझ आ गई या नहीं आया एनीवन? हेलो, आ गई है? बाकी लोग चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्या। अच्छा जी, अब देखिए जी, हमारे सामने नेक्स्ट जो है हमारे पास मौजूद है जनाब, हम सबसे पहले ये वाला कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ये वाला, ये कॉन्टिनेंट क्योंकि छोटा सा है और इसके ऊपर जनाब याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता दूँ, ये भी आप नोट कर लें। एशिया में ना 48 कंट्री है, कितने? 48 है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, कितने? 54। यूरोप में जनाब कितने हैं? यूरोप में 44, ठीक है। साउथ अमेरिका के जो है वो है जनाब 12, और इसके जनाब 23, ठीक है, 23। और ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं भला? अच्छा चले, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, 54, 48, 54, 23, 12 और 12, 3 3 6। अब इनको जमा करते हैं। नहीं वो मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 11 ना हो। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। 54 और 48 कितने बने? 102, 102, 54, 156, 179, 179 और 12, 191, 91 और 2 मुल्क और काउंट होते हैं। ठीक है। असल में ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 12 मुल्क जरूर है, लेकिन ऑफिशियली तौर पे कौन कौन सा काउंट होता है? एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, ठीक है। इस वजह से ये 93 बन जाते हैं, ठीक है, 193 बन जाते हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, आपने 12 ही याद रखने पेपर के लिहाज से भी, क्योंकि 12 ही है, ठीक है, छोटे मोटे मुल्क मिला के। अच्छा जी, तो ये आप आपने ये भी सूरत याद रखनी है। अब देखिए, हमारे पास जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, आपने हाथी देखा हुआ है, एलिफेंट। हाथी के जनाब आगे जो, जिसको हम मुंह कहते हैं, उसको सूंड कहा जाता है। उसका सूंड कैसे होता है? लटका हुआ होता है, बिल्कुल उस शक्ल का जनाब वाला हमारे पास क्या है? साउथ अमेरिका। कैसे? देखें जनाब, आगे समझ, ऐसे होता है ना लटका हुआ, बिल्कुल इसी शक्ल में जनाब वाला साउथ अमेरिका का जो है कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल इसी शक्ल में, ठीक है। तो अब आपने, हम ये देखते हैं कि जनाब इसके अंदर जो 12 मुल्क हैं वो किस तरह मौजूद हैं, और इसके अलावा जो पीपीएससी के अंदर पीपीएससी के अंदर अहम सवाल आते हैं वो किस तरह मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर पे इसके अंदर जनाब जो मुल्क मौजूद हैं, एक मुल्क मौजूद है, बल्कि वो मुल्क नहीं है, आज़ाद नहीं है, इसलिए हम इसको मुल्क भी नहीं कहते। ये जो मुल्क मौजूद है इसको हम कहते हैं जनाब गियानिया। फ्रेंच गियानिया भी कहते हैं इसको जनाब, क्या कहते हैं? फ्रेंच गियानिया। और याद रखिएगा ये फ्रांस के अंडर है, इसको फ्रेंच गियानिया भी कहते हैं। ये मुल्क काउंट नहीं करना, ये मुल्क काउंट नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक मुल्क मौजूद है, इसको हम कहते हैं जनाब सूरीनाम, SURINAME, सूरीनाम, ठीक है। एस फॉर समाल, सूरीनाम कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका का सबसे छोटा मुल्क है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे सामने तीसरा जो मुल्क है, इसका नाम है जनाब, इसको कहते हैं गियानिया, GUYAN, गियानिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो मुल्क मौजूद है, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जनाब
ये है जनाब वेनेजुएला। वेनेजुएला का आपने नाम सुना होगा। दुनिया के जो एल के ज़खायर हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेनेजुएला में मौजूद है। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब एक मुल्क यहाँ बनाइएगा आप, ये वाला इस मुल्क को भला क्या कहते हैं? इस मुल्क को कहा जाता है जनाब हमारे पास जो कि पैनामा कनाल भी मतलब के साथ रखती है, इसको हम कहते हैं कोलंबिया। क्या कहते हैं? कोलंबिया। ठीक हो गया। क्या कहते हैं भला इसको? कोलंबिया। अच्छा जी, उसके बाद कोलंबिया के बाद हमारे पास एक और मुल्क यहाँ मौजूद है जहाँ पे इसको हम कहते हैं इक्वाडोर। ECUADOR, इक्वाडोर। क्या कहते हैं भला इसको? इक्वाडोर। इक्वाडोर खत्म होने के बाद यहाँ पे आपने पी बना दिया। पी बन गया, इसको कहते हैं जनाब पीरू। पी फॉर पीरू। पीरू। पीरू के बाद जनाब हमारे पास एक मुल्क जो है यहाँ पर मौजूद है इस जगह। इस मुल्क को हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जनाब अपना वो यार क्या कहते हैं इसको, वो जिसका लापाज कैपिटल भी है, बोलीविया। बोलीविया यार, हाँ बोलीविया। इसको कहते हैं जनाब बोलीविया। BOLIVIA, बोलीविया। एक मुल्क जनाब यहाँ पे मौजूद है। इस मुल्क को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जनाब पीराग्वे। पी फॉर पीराग्वे। ठीक है। एक मुल्क जो है वो यहाँ पे मौजूद है जनाब, इसको हम कहते हैं यूराग्वे। URUGUOY। ठीक हो गया। एक ये आपने यहाँ पे लाइन लगा दी, ये क्या बन गया? ये बन गया ए। लेकिन इस ए से पहले यहाँ पे एक लंबा सा मुल्क है जनाब चिपका हुआ, इसको कहते हैं जनाब चाइना। ये देखें कितना लंबा है, काफी लंबा मुल्क है ना। दुनिया का खतरनाक और दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप है, स्नेक है, उसको क्या कहते हैं बोला? एनाकोडा। ANACODA। तो वो भी यहीं पे रहता है। कभी आपने उसको देखो ना, वो पूरे बंदे जो है निकल जाता है। एनाकोडा भी यहाँ पे रहता है। ठीक है। अब ये क्या बन गया? ए बन गया। इस ए को बना दें, इस ए का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन। अब काउंट करें कितने मुल्क हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो गिनना नहीं है। फिर 12 बच गए जनाब। तो 12 बाकी जो बच गए हैं जनाब, ये सारा जो बच गया एरिया, इस पूरे को भला क्या कहते हैं? भला इसको कहते हैं ब्राज़ील। क्या कहते हैं भला? ब्राज़ील। अब मैं आपको ना एक बात बता दूँ, कोड बता दूँ। दुनिया में पहले जो 5 मुल्क हैं ना, वो कौन कौन से हैं? उन 5 मुल्क को कोड के साथ याद रहे ताकि आपको याद रहना चाहिए। जी जनाब, कोड क्या है भला? RCUCB। RCUCB। ये किस लिए भला? एरिया वाइज। रशिया सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। कनाडा दूसरे नंबर पर। USA अमेरिका तीसरे नंबर पर। चाइना चौथे नंबर पर। ब्राजील 5वें नंबर। अब देखें ये ब्राजील जो मैंने बनाया ये 5वें नंबर पे दुनिया में, इसलिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा ताकि आपको याद रहना चाहिए। जी जनाब, जहां तक समझ आ गई बात की गई? एनीवन? बात क्लियर होगी? अच्छा जी, इसके बाद जनाब यहाँ पे ना दो हमारे जी मैंने कहा है कि RCUCB कोड है दुनिया के रकबे के लिहाज से दुनिया के 5 बड़े मुल्क। R फॉर रशिया, रशियन फेडरेशन है। C फॉर कनाडा, U फॉर USA अमेरिका, C फॉर चाइना, B फॉर ब्राज़ील। बात होगी क्लियर? अच्छा जी, अब देखें B फॉर क्या होता है? B फॉर बिग होता है, तो B फॉर ब्राज़ील हो जाएगा, बड़ा। और S फॉर सूरीनाम है, S फॉर समाल भी होता है। तो सूरीनाम में जनाब जो है वो छोटा मुल्क है। सूरीनाम में सबसे छोटा मुल्क है और ब्राज़ील बड़ा मुल्क है। किस में? साउथ अमेरिका में। कौन सा कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं? साउथ अमेरिका। जी जनाब, समझ आ गई बात की? साउथ अमेरिका का जनाब ये हमारे पास राइट साइड है। राइट साइड पे जो ओशन है उसको हम भला क्या कहते हैं? बल्कि आप बताएं, ये देखें साउथ अमेरिका है, इसके राइट साइड पे कौन सा ओशन आता है और लेफ्ट साइड पे कौन सा आता है? एटलांटिक
इस साइड पे आ जाएगा जनाब पैसिफिक ओशन, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, पैसिफिक ओशन, ठीक है, बात क्लियर होगी। अच्छा जी, यहाँ पे जनाब एक आइलैंड है, आइलैंड जिसका नाम है फाकलैंड आइलैंड, क्या कहते हैं इसको बोला, FALK, फाकलैंड, फाकलैंड आइलैंड। और ये जो आइलैंड है जनाब ये किसके कंट्रोल में है, ये यूके के कंट्रोल में है, ठीक है। अच्छा जनाब, कभी आपने एक बात देखी है कि जो यूके है, यूके ने तकरीबन 193 मुल्क है, 193 मुल्क में से 178 मुल्कों ने यूके से आज़ादी हासिल की है। कभी आपने यूके के बारे में पढ़ा, यूके कितना बड़ा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया को जनाब अपनी लपेट में रख के जनाब मतलब आबाद किया, उनको ईजाद किया, हुकूमत की, लोगों को गुलाम बनाया। पाकिस्तान का एक सूबे जितना बड़ा मुल्क है सिर्फ, यानी पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उसका पाकिस्तान का सिर्फ एक सूबा मिल जाए ना तो मतलब है जैसे हमारा लाइक पंजाब है, पंजाब जितना वो बड़ा है जस्ट। वजह क्या है, कानून की हुक्मरानी और इसके अलावा जनाब एडमिनिस्ट्रेशन, 2 चीज़ें जिसकी वजह से बहुत आ गया, ठीक है, आज भी वो बहुत आ गया। तो लिहाजा ये जनाब आपका मतलब एक मैप है जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दी है। इसके अलावा इसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है, लॉन्गेस्ट रेंज है, वो कौन सी है, उसका नाम है एंडीज रेंज। एंडीज रेंज जो है जनाब यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से ये जाती है जनाब, इस तरह जाती हुई, इस तरह जाती हुई, इस तरह जाती हुई, लॉन्गेस्ट रेंज क्या कहेंगे बोला इसको, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, क्या कहेंगे बोला, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। क्या नाम है भाई इसका, इसका नाम है जनाब ANDES। और याद रखिएगा ये जनाब 7000 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर लंबी है, 7000 किलोमीटर। अब ये रेंज ऊपर जा रही है जनाब, यहाँ पे जनाब एक इन 2 मुल्कों के दरमियान जहाँ पे एक लेक आती है, हाँ जी, क्या नाम है भला उसका, इस लेक का नाम है लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका क्यों लेक टीटीकाका तो लेक यहाँ पे मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची लेक जो है वो लेक टीटीकाका, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर है। अब ये किसी की मलकियत नहीं है, ये बिटवीन द बॉर्डर बिटवीन पीरू एंड बोलीविया, पीरू और बोलीविया के बॉर्डर पे मौजूद है। सवाल कभी भी नहीं आएगा कि ये कहाँ पे है, सवाल सिर्फ ये आएगा विच 2 मुल्कों के बॉर्डर पे ये लेक मौजूद है, उसका क्या नाम है, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे जो हमारे पास हमने बोलीविया कैपिटल बोलीविया है, बोलीविया का जो कैपिटल है उसका नाम है लापाज, LAPAZ। लापाज क्यों ज़रूरी है, लापाज जनाब दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लापाज। हाईएस्ट क्यों, अगर आपके कमरा है, आप कमरे में पानी छोड़ देते हैं तो पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा, जहाँ नीचे जगह होगी, यानी लो पॉइंट होगा, और वहाँ पे कब जाएगा, जहाँ आखिर में कहाँ जाएगा, जहाँ हाईएस्ट पॉइंट होगा, यानी ऊंची होगी। इसी तरह अगर दुनिया के अंदर पानी आ जाए तो सबसे आखिर में कहाँ किधर जाएगा, लापाज हो जाएगा। हाईएस्ट कैपिटल, हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैपिटल इज लापाज इन साउथ अमेरिका। जी अंडरस्टैंड जनाब, जी जनाब समझ आगे नहीं आई। अच्छा जी, अब इस पहाड़ी सिलसिला के ऊपर, पहाड़ी सिलसिला के ऊपर जनाब यहाँ पे एक सूबा है जिसका नाम है मेंडोजा, MENDOZ, मेंडोजा प्रोविंस है। और यहाँ पे एक पहाड़ी आती है जो हाईएस्ट मतलब है क्या कहते हैं, हाईएस्ट पीक है, और इसका नाम भला क्या है, इसका नाम है अक्कनकगुआ, ACON, ACCOGUA, अक्कनकगुआ। अक्कनकगुआ जनाब हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका है, इसकी हाइट जो है वो मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट जो है कोई 3700 कुछ है, ठीक है, मुझे सही तरह याद नहीं, तो याद ये भी आपने याद रखना जनाब। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, मुझे एक बात बताएं, ये जो इक्वेटर लाइन जा रही है, इक्वेटर लाइन इस कॉन्टिनेंट से गुजर रही है या नहीं गुजर रही, एनीवन, इस मैप में आप बताएं कि इस कॉन्टिनेंट से गुजर रही है या नहीं गुजर रही, एनीवन, वेरी गुड। इक्वेटर लाइन जो गुजरती है ना वो टोटल 13 मुल्कों से गुजरती है, कितने मुल्कों से गुजरती है, 13 मुल्कों से। अब इसमें देखें, इसमें 3 मुल्कों से गुजरती है जनाब, कितने मुल्कों से बड़ा, 3 मुल्कों से। किस तरह बड़ा गुजरती है, इस तरह। इसका कोड क्या है, इसका कोड है जनाब ECB,
ECB कैसे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ECB, ठीक है। यानी कि ये 3 मुल्क से गुजर रही है जनाब यहाँ पर। ये या मैं बता दूँ कि इक्वेटर लाइन जनाब यहाँ 3 मुल्क से गुजरती है और यहाँ पे जनाब 6 मुल्क से गुजरती है और जनाब ये जहाँ 6 मुल्क से गुजरती है 9 है और यहाँ पे गुजरती है जहाँ 3 से गुजरती है और एक जो है ना यहाँ पे एक मुल्क आता है जी, क्या फ्री मेडल, फ्री मेडल का तो मैंने नाम नहीं लिया, क्या बात कर रहे हैं, दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं। चुप हो गए। अच्छा जी, आगे देखें जनाब हमारे सामने इसके अंदर मजीद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये हमारे पास साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन दोनों के दरमियान ना पानी नहीं था, इन दोनों के दरमियान मट्टी थी, यानी पहाड़ थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब इस पहाड़ को ख़त्म कर दिया। अब क्या हो गया, अब जनाब यहाँ पर पानी, इसका पानी इसके साथ मिल गया, लेकिन इसके ऊपर मतलब उन्होंने एक कैनाल बनाई ताकि इनकी चीज़ें इधर आ सके, इनकी चीज़ें उधर जा सके। तो लिहाजा ये कोलंबिया के साथ जनाब यहाँ पे आगे जाएगी और इधर जो मुल्क है नॉर्थ अमेरिका का, उसका नाम है पनामा। क्या नाम है, पनामा। पनामा कैनाल जो है जनाब याद रखिएगा 1914 में ओपन होती है और पनामा के कैनाल को अमेरिका ने बनवाया था। 1914 में एक बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वो कौन सा इंसिडेंट था, 1914 में एक इंसिडेंट भी हुआ पूरी दुनिया में, 19 वर्ल्ड वार 1 हुई थी। वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये जैसे पहाड़ी सिलसिला जहाँ से जा रही है जनाब हमारे पास एंडीज रेंज, तो यहाँ पे जनाब जब गुजरती है वेनेजुएला में, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। वाटरफॉल मतलब जिसको हम मतलब आबशार भी कहते हैं, और क्या नाम है उसका भला, उसका नाम है एंजल वाटरफॉल। क्या नाम है उसका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंजल ANGE है, एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल जो है ये जनाब 979 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और वो कहाँ पे आता है, कोलंबिया में आता है, सॉरी बोलीविया, वेनेजुएला में आता है, ठीक है। तो ये आपने असल में याद रखने हैं। अच्छा जी, आप यहाँ पे देखें दुनिया के टोटल जो मुल्क हैं लैंड लॉक वो हैं 44 में से 2 यहाँ पे मौजूद है। अब मुझे एक बात बताएं, ब्राज़ील यहाँ पे जाता समंदर है, ये सारे सबको समंदर लग रहा है, इधर भी समंदर लग रहा है, इसको भी लग रहा है। यहाँ पे 2 मुल्क कौन से जिनको समंदर नहीं लग रहा, और वो एक है जनाब यहाँ पे बोलीविया और एक है जनाब पीरागवे। तो जनाब अगर आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो आपका BP हाई होगा या नहीं होगा, एनीवन हाई होगा ना। तो लिहाजा इसका कोड क्या है, BP के नाम से याद रखना है। BP को जनाब बंद कर दिया गया किसके कमरे में, उसका मीटर हाई हो गया, बोलीविया एंड पीरागवे। तो ये जनाब क्या है, लैंड लॉक। अब यहाँ पे सवाल ये है कि लैंड लॉक किसको कहते हैं। लैंड लॉक कहते हैं जनाब वो मुल्क जिसको समंदर की कोई हदूद नहीं लगती, जिसका कोई अपना समंदर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पीराग्वे ने जनाब समंदर की तरफ जाना तो आगे जाता है तो यूरोग्वे आ जाता है, ठीक है। बोलीविया ने समंदर की तरफ जाना तो आगे पीरू आ जाता है, इधर जाता तो यानी इसको समंदरी रास्ता लगता नहीं है। समंदरी रास्ते का लगना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अहम बात होती है। उसकी वजह क्या है कि समंदर जो होता है उसकी ट्रेड होती है, दुनिया की 97% ट्रेड जो होती है वो जनाब समंदर के जरिए होती है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए ब्रेसिक है कि पाकिस्तान को जनाब तकरीबन 1058 किलोमीटर 1046 किलोमीटर की मतलब है कॉन्टिनेंटल लगती है। जी जनाब, ये लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप होता है। हमारा 40 मिनट का लेक्चर था और मैं आपको भेजता हूँ, लेकिन कल जो टेस्ट होगा इसमें से जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसमें से 10 क्वेश्चन ऐड होंगे। कितने सवाल ऐड होंगे, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, यानी 10 से 20 की रेंज तक ऐड करूँगा। लिहाजा इसको अच्छी तरह याद करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, और साउथ अमेरिका के ऊपर मजीद एक लेक्चर देंगे और वो इंशाल्लाह आपका ये सारा ख़त्म हो जाएगा। जी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट मौजूद है। अगर क्लास ख़त्म हो जाती है तो आप क्लास को ख़त्म ही समझिएगा, दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लास ख़त्म नहीं होती, अभी 1 मिनट पड़ा हुआ है, किसी बंदे ने एक सवाल करना चाहिए, जल्दी जल्दी बताएं ना। एनीवन, एनी क्वेश्चन? अभी इसकी रिकॉर्डिंग और इसकी पिक्चर ये जो बनी हुई है आपको ग्रुप में आ जाती है। एनी क्वेश्चन जनाब? जस्ट कुछ सेकंड रह गए हैं।
क्लासेस में मतलब है अपने शौक से लेता हूँ, वरना आपका तो टेस्ट सेशन है ना, मैं आपको वैसे मतलब वो कराई जा रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस भी होती हैं, क्योंकि बाद में दोबारा हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होगा। जी 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 मैं देखिए मेरी बात, मैथ के लेक्चर मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो मैं आज पहला लेक्चर शेयर करूँगा। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, कॉन्टिनेंट जितने भी है ना, मेरी कोशिश है कि मैं जो टेस्ट सेशन वाले स्टूडेंट है सबको फ्री में पढ़ा दूँ, ठीक है इंशाल्लाह। पहला जैसे हमने पढ़ा दिया है, अगले भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक समझ आ गई जनाब। चलें इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी। सॉरी, मैं आपको लेक्चर भेजता हूँ, किसी बंदे को टेस्ट में समझ नहीं आ रही, कोई मसला आ रहा है तो मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। जी जनाब, समझ आ गई बात की। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीक लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफिज़।